नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बात करने वाले जस्टिन ट्रूडो के अपने देश कनाडा में प्रेस फ्रीडम की ये स्थिति है कि सिर्फ एक सवाल पूछने पर, जी हां, सिर्फ एक सवाल पूछने पर एक पत्रकार को उसी वक्त हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सोचिए कि अगर ऐसा कोई वाकया भारत में हो जाए तो फिर कैसी प्रतिक्रिया होगी। मोदी सरकार को दिन रात फासिस्ट, तानाशाह और न जाने क्या क्या कहकर कोसने वाले गिरोह के लोगों ने तो अब तक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया होता, सड़क जाम कर दिया होता, शायद आधी रात में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए होते, लेकिन अभी ये सब चुप हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि भारत में उन्हें हर तरह के अनर्गल प्रलाप करने की पूरी छूट है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर भी वो मोदी सरकार को तानाशाह कहते हैं। लेकिन असली तानाशाही तो ये है जहां सबके सामने कैमरा पर एक पत्रकार को सिर्फ एक सवाल पूछने पर हथकड़ी लगा दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह वाकया हुआ 8 जनवरी 2024 को। दरअसल इसके ठीक 4 साल पहले यानी 8 जनवरी 2020 को तेहरान में ईरान ने यूक्रेन एयरलाइंस के एक सिविलियन यानी यात्री विमान को मार गिराया था, जिसमें कुल 176 लोग मारे गए थे। उनमें से 55 या 57 कनाडा के नागरिक थे। इन्हीं मारे गए लोगों की याद में इस घटना की चौथी बरसी पर रिचमंड हिल में, जो कनाडा में एक जगह है, वहाँ एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जहाँ रिबेल न्यूज, एक चैनल है वहाँ का, उसका एक पत्रकार जस्टिन ट्रूडो के सरकार में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड से ये पूछता है कि आखिर इस घटना यानी 176 लोगों की हत्या, जिसमें 55 से 57 कैनेडियन थे, उसके लिए जिम्मेवार ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स IRCG, जिसको कुड्स फोर्स भी कहते हैं, उसको कनाडा की सरकार एक आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर रही है। आइए पहले वीडियो देखते हैं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। रिपोर्टर बार बार कह रहा है कि सवाल पूछना उसका काम है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती है, सबके सामने उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। पहले वीडियो देखिए। Freeland, how come the IRGC is not a terrorist group? Why is your government supporting Islamo-Nationalism? What? You've been excuse me. What are you doing? You're under arrest for assault. What, sir? Why are you pushing me? You're under You arrest for bumped into assault. me. Who are you? You're under arrest I for don't even assault. know. What are you Police. talking about? Police, you're under arrest for How am I assault. under arrest? You bumped into me. You pushed into me. You bumped, I was just scrubbing. I got my credentials here and you just bumped into me. So excuse Police, you're under me. What arrest is your for name pushing. and your badge? Come over What here is for your a name and second. your badge? You've been told you're under arrest. Why am I under arrest? Come on over here. We've got a couple officers. He blocked my way. What? Sir. I was just scrumming Christian Freeland. I'm a police officer. You're under arrest. What is your name and your badge For number? assaulting a police officer. How is that possible? Okay? Because You assaulted me 3 years ago when blackface was back. that was very aggressive. What was happening. You mean I was asking questions aggressively? No, your actions were. You were almost pushing everybody over. That's how it appeared. Lincoln, you got this on video, right? He's saying I'm pushing people over? Yeah, That's an how it absolute appeared. falsehood. There were feet were shuffling. So off now on it the appeared assault. that way. That's what you're saying, officer? Well, It appeared I that's was what I pushing saw. people. Well, I wasn't. that's I what didn't I saw. touch a single That person. was a little bit aggressive for what was happening. Get that. You're under arrest. Please Okay. take the microphone out of my face. Well, I'd like an ongoing record of this. You're arrested. Can I have the microphone? Can I have the microphone? Can I have the microphone? Can you give? I'm not officer. Take your hand out. Why am I under arrest? I'm just doing my job. Resist. You don't need to resist. You don't have to say anything. You know the drill. I have nothing to hide, officer. Welcome to Black Faces Canada. This is what they do to journalists. I was merely scrumming Minister Freeland, and a RCMP officer blocked me, and evidently this is now a trumped-up charge of assault, folks. I didn't come here to cause any trouble. I came here to do my job, and now I'm handcuffed. This is your Canada now, folks. You know, this is the Gestapo taking blackface's orders. Outrageous. And meanwhile, the Islamic Revolutionary Guard Corps is not a terrorist organization. Is not a terrorist organization.
And these liberals have the audacity to show up at a vigil for a plane in which almost 200 people were killed, 57 Canadians, one unborn child, by the way. And look at this. They don't want, it is against the law in Black Faces Canada to ask insensitive questions, impolite questions. So a Canadian government that props up an Islamo-fascist regime, that's okay. But if you ask questions about that, that's not okay. This is an absolute outrage. I didn't come here to cause trouble, folks. I just came here to ask questions. You're gonna have to back up a little bit, okay? They're conducting an That's my investigation. cameraman, sir. He's not doing anything. No, I just want to provide some space so that everybody's safe here, okay? तो आपने देखा कैसे जस्टिन ट्रूडो के देश में सिर्फ एक सवाल पूछने पर एक रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सवाल पूछने पर पुलिस उसके ऊपर असॉल्ट यानी हमला का चार्ज लगाती है और गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स, जिसे कुड्स फोर्स भी कहते हैं, वो ईरान की सेना का एक प्रमुख अंग है जिसका गठन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद किया गया था। इसके पास वास्ट पावर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पावर है। इसका काम बाहरी ताकतों के ईरान में हस्तक्षेप को रोकना है। ईरान की सरकार इस्लामिक मूल्यों से भटक न जाए, इसको सुनिश्चित करना भी इसका काम है। इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट भी इसके पास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पास ईरान के मिसाइल फोर्स का भी कमांड है। अब खबरों के मुताबिक ये फोर्स बहुत सारा काम गुप्त तरीके से भी करती है, जिसमें शायद स्मगलिंग भी शामिल है। बहुत सारे ऐसे काम करती है जो बहुत सारे देशों की नज़र में इलीगल है, और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जिसमें अमेरिका भी है, स्पेन भी है और मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब भी हैं और बहरीन भी है। 3 जनवरी 2020 को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, अमेरिका की सेना ने IRGC के कमांडर कासिम सुलेमानी की ड्रोन से हत्या कर दी थी। कहते हैं कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए 8 जनवरी को IRGC ने इस विमान को मार गिराया था। हालांकि ईरान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और कहा कि गलती से इस विमान पर हमला हो गया और उसको मार गिराया गया। जाहिर है ईरान तो कभी इसे खुलकर स्वीकार करेगा नहीं। अभी मैंने आपको यह बताया कि इस घटना की पृष्ठभूमि क्या थी। अब वापस आते हैं रिबेल न्यूज़ के रिपोर्टर डेविड मेंजिस की, जिसने कनाडा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा कि 176 लोगों की हत्या, जिसमें 50 से ज़्यादा कैनेडियन थे, उसके लिए जिम्मेवार IRGC को आखिर सरकार आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर रही है। रिपोर्टर कहता है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार तो ईरान की इस्लामो फासिस्ट सरकार को समर्थन कर सकती है, लेकिन एक पत्रकार इस बारे में सवाल नहीं पूछ सकता। आप सोच सकते हैं उसकी पीड़ा क्या रही होगी। अब बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो वैसे तो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा पैरोकार मानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक चेहरा कुछ और ही है। आपको याद होगा कि भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था, सड़कें जाम कर दी गई थी, तो इसी ट्रूडो ने उसका समर्थन किया था ये कहकर कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब उनके अपने देश में ट्रक ड्राइवर्स ने चक्का जाम किया अपनी मांगों को लेकर, जो कोविड-19 और वैक्सीन से रिलेटेड था, तो उनके प्रोटेस्ट को बेरहमी के साथ, पूरी ताकत के साथ जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कुचल दिया था। ट्रक ड्राइवरों की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था, उनके बैंक अकाउंट सीज कर लिए गए थे। तो कहाँ गए थे ट्रूडो के वो विचार, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले विचार, पीसफुल प्रोटेस्ट वाले विचार, जो उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त जाहिर किए थे, जो भारत में हो रहा था। जाहिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर ट्रूडो अपनी सुविधा और फायदे के हिसाब से स्टैंड बदलते रहते हैं। भारत के किसान आंदोलन में उन्हें खालिस्तानी ताकतों को सपोर्ट करना था, क्योंकि खालिस्तानी ताकतों के सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही है वहाँ, तो उन्होंने उसे पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर सपोर्ट किया। लेकिन जब अपने देश में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ तो उसे ताकत से कुचल दिया। ट्रूडो ने यह बार बार साबित किया है कि वो वास्तव में एक फासिस्ट हैं, जिसने डेमोक्रेट होने का चोला ओढ़ रखा है। और आप देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का हाल देखिए, और ये भी समझिए कि ये कौन से लोग हैं जो ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाते हैं और किस आधार पर बनाते हैं, ये भी देखिए। एक पत्रकार को सिर्फ एक सवाल पूछने की वजह से गिरफ्तार करने वाला कनाडा फ्रीडम इंडेक्स में 15वें स्थान पर है, जबकि पत्रकारों को पूरी छूट देने वाला भारत 161वें स्थान पर है। 180 में 161वां स्थान 161 भारत का है, जबकि कनाडा 15वें स्थान पे 15 पर।
अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान 150वें स्थान पर है और अफगानिस्तान भी भारत से ऊपर है 152वें स्थान पर। अब सोचिए कि ये मजाक नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान में वहाँ की मीडिया को ये साफ साफ कह दिया गया था कि आपको इमरान खान का नाम नहीं लेना है। सोचिए, जहाँ पे इतनी ज्यादती होती है, आप नाम नहीं ले सकते एक पॉलिटिकल अपोनेंट का, वो भी प्रेस फ्रीडम में भारत से ऊपर है। और अफगानिस्तान का तो क्या ही कहना। तो आप ये समझिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बनाने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से भारत के प्रति बायस्ड हैं, उनके अपने प्रेफरेंसेज हैं, वो एक गिरोह के लोग हैं, एक आइडियोलॉजी के तहत वो इस तरह की रैंकिंग करते हैं। और जस्टिन ट्रूडो की जहाँ तक बात है, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीसफुल प्रोटेस्ट ये सब कहने की बातें हैं। उनकी भी अपनी पसंद नापसंद, अपनी आइडियोलॉजी है और उसी के आधार पर वो अपने निर्णय लेते हैं, अपनी मानसिकता को बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।